So through consensus we came to this thing के it was actually decided जब हम लोग ने बैठ के बात करी, मैंने, तैमूर भाई ने, अब्दुल्ला ने, कि if you want to earn good amount of money then you should be targeting, but then again it is based on कि आपने कहाँ पहुंचना है. You should target somewhere between 30,000 and 20,000 BSR, ठीक है, which is basically explains the whole 30,000 rule. So yeah, so now that you've understood what the 30,000 rule or BSR rule is, the profit potential with this rule will bring you towards earning 3,000 for around $3,000 for paperback and around $1,500 for ebook. So yeah, Abhi, I'm going to go into detail with this, and with which will in time answer all of your questions. So yeah, मतलब what we mean over here is कि let's suppose आज आप ये सोचते हो, मैं अभी बॉटम अप स्ट्रेटजी के ऊपर डिस्कस करता हूं, लेकिन अभी मैं सिर्फ आप लोग को एक विजनरी वाली सोच बता रहा हूं कि इफ यू वांट टू अर्न गुड चंक ऑफ मनी थ्रू किंडल, यू शुड अर्न you should aim towards the 30,000 rule. ठीक है, कि मैं एक ऐसी कैटेगरी में जाऊं जहां पे कोई ऐसे कीवर्ड के ऊपर जाऊं या ऐसी कैटेगरी या नीश के ऊपर जाऊं कि जब मैं उसके मेन सर्विंग कीवर्ड के ऊपर सर्च करता हूं जाके बुक्स पे, तो उसके फर्स्ट 4 या फर्स्ट 6 का जो एवरेज बीएसआर निकलेगा उस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर. एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द कीवर्ड्स जिस पे वो बुक रैंक हुई हुई है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ कीवर्ड्स जिस पे आप ऑटोमेटिकली स्टेम हो जाते हो. I'm talking about your main serving keyword. Let's suppose अगर मैं generally एक बात बोलता हूं, it's anxiety, just saying, या it's stress. तो अगर आपका main serving keyword stress है, and you know कि आपने specifically उस keyword पर rank होने के लिए book लिखी है, तो जो first four ranks का जो average BSR निकलना चाहिए should be somewhat around 30,000. And इस पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई ये ऐसी चीज नहीं है कि नहीं बस 30,000 से थोड़ा भी ऊपर ना हो, थोड़ा सा भी नीचे नहीं आओ. इट कैन बी अराउंड 25,000. सही है, बट ऑल इन ऑल थ्रू कॉन्सेंसस वी केम टू द 30,000 रूल के हाँ दिस इज व्हाट वी वांट टू गिव अवे. ठीक है, इट इज पॉसिबल कि इन फ्यूचर सेशंस जब तैमूर भाई बात कर रहे हो या जब हम तीनों मिलकर बात कर रहे हो, दैट वी समटाइम्स रेफरेंस इस चीज का यूज करें कि 25,000 या 20,000 का. लेकिन ये बस आप लोग ने अभी फिलहाल अभी इतना याद रखें कि 30,000 रूल को एम करने का जो मेन हम लोग ने रखा था ना, वो ये था कि इफ यू आर इन दैट दिस स्वीट स्पॉट यू कैन स्टार्ट अर्निंग अराउंड 3,000 to 1,500. ई बुक के लिए 1,500 है, लेकिन पेपर बैक के लिए. एंड कीप दिस इन माइंड कि तैमूर भाई और हम लोग के पास ज्यादा एक्सपर्टीज जो है वो पेपर बैक से रिलेटेड है, एंड विच इज वाई हम लोग आप लोग को जो है ना इससे रिलेटेड ज्यादा स्ट्रेटजीज बता रहे होंगे लॉन्चिंग एंड रैंकिंग की. So with paperback it means that you're aiming towards almost, एक second, let me change that a bit, 5 to 10 daily sales to start off with. It evolves. ठीक है, the question is it a good starting point? So 30,000 रूल मैंने then again अभी अपने सेशन के स्टार्ट में आप लोग को एक बात मेंशन कर दी थी. एक मिनट रुकिएगा जरा, मैं चैट भी साथ में खोल लूं. 30,000 जो वो है स्ट्रेटजी, इज इट अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट और नॉट, इस पे बात कर लेते हैं. सो if you're going with the approach of bamboo or hyper launch, then yes, it is a good approach. You can aim towards that, and it consumes very less time. ठीक है, because आप basically you're on adrenaline and you're doing giveaways. You getting yourself ranked because you know you don't know the exact back end algorithm, but you know how things work when it comes down to ranking. But if you are going with a more steady and stable approach, which I call it, or we can call it, a ladder launch, then no, which is less risky. Okay, almost
few months back I did share the estimated sales, and these are just estimations, so you don't have to get yourself too locked on these figures. Okay, how much are you going to sell if you have a given BSR? And this is then again estimations. Okay, based on these estimations, based on what we had, based on the results that we have derived, जो तैमूर भाई ने निकाले और जो दूसरे लोगों की सक्सेस स्टोरीज जो थी, नॉट फ्रॉम ईसी बट इनके अपने नेटवर्क में से, सो वी केम डाउन टू द कंक्लूजन कि वी आर गोइंग टू गिव अवे कि भाई 30,000 रूल के ऊपर आप लोग, वी फील मच मोर कॉन्फिडेंट अबाउट कि हम लोग ये इसके ऊपर आप लोग को एजुकेट करें. द नेक्स्ट थिंग इज कि 30,000 rule is basically where you want to be. If you're going with Bamboo or Hyperlaunch, that is fine. You can directly jump onto it. Okay. If you want to go with something more, you don't have any problem with slow and steady approach, a more stable approach, then this is something that we have come up with. Okay. You can go with Kindle as well with this one, or paperback. But yes, ये approach जो है ये Kindle के लिए थोड़ी ज्यादा inclined है. इसका मतलब ये नहीं कि ये paperback के लिए fail है. I know a lot of people who are doing the same kind of launch for paperback as well, and they're successful. However, I know more people in my network who have given away this strategy with Kindle and have themselves in the right place in terms of sales. ठीक है, तो अब ये बॉटम अप अप्रोच है क्या, और वी कॉल इट द लैडर अप्रोच. व्हाट वी डू इज इन दिस पर्टिकुलर अप्रोच, हम करते ये हैं कि हम go from the profitable keywords with the least results to the one with more results. What I mean over here is, let's suppose आज आप बैठ के सोचते हो कि मैंने हेल्थ की नीश में बुक लॉन्च करनी है. ठीक है, जस्ट कीप दिस इन माइंड कि आप लोग ने हेल्थ की नीश में book launch करनी है. Now that is the most broad category that you can think of right now. ठीक है, and if you, let's say, अगर Amazon के ऊपर जाके अगर मैं if I just search about health right now, so we have more than 100,000 results right now in health. And what I believe is कि if you're trying to get yourself ranked in a category or a keyword, main serving keyword, जिस पे आपके सर्च रिजल्ट्स ही मोर देन 100,000 है, it becomes very very difficult for you to get yourself ranked in sea of books or competition, जहां पे पहली, I wouldn't call saturation, but पहली इतना ज्यादा competition है आप लोग के लिए. ठीक है, तो then again मैं launching strategies compare नहीं कर रहा exactly, but if you're not going with Bamboo or Hyperlaunch, this is a much more safer strategy for you. Isme bhi there is investment required, but it's more or less more inclined towards ke, how you're supposed to go with exactly आपके steps होने क्या चाहिए. तो at the top of your funnel आपके पास health है जिसमें आपने book launch करनी है, but are you supposed to go with it कि आपने यहाँ पे book launch करनी भी चाहिए level 1 पे या नहीं. So it comes down to कि नहीं, अभी hold that thought right there, and what you're supposed to do is कि you're supposed to explore more sub niches which are let's say which serves health. Next keyword जो हम बोल सकते हैं level 2 पे is more which serves health is wellness or fitness. ठीक है, इन areas को आप explore कर सकते हो. Health and wellness का I'm not sure कितने search results है. Let's just go ahead and see कि क्या आ रहे हैं. So there you go. With health and wellness we have 90,000 research results. मैंने यहाँ पे 80,000 लिखा हुआ है. Let's change this to 90. On level 3 मजीद और बाइफिकेट अगर हम करते हैं इन कैटेगरीज को और सब क्लास या सब निश में जाते हैं हम लोग, तो वी हैव हेल्थ एंड वेलनेस को सर्व करने वाली कैटेगरी योगा. सही है, which for which we have almost 50,000 search results. ठीक है, then we have yoga poses जो योगा को सर्व करता है, we have 6,000 for that, and then we have yoga poses for beginners for which we have almost 1,000 search results.
अब ये स्ट्रेटेजी बोलती क्या है मैं आपको बताता हूँ, ये मजीद मैंने अपनी नेक्स्ट स्लाइड में भी और ज्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है। ये स्ट्रेटेजी ये बोलती है यू हैव टू कीप एन आई ऑन फ्यू थिंग्स ओवर हियर, ठीक है। वेरी क्रिटिकली कुछ चीजों को आप लोग ने एनालाइज करना होगा। वो क्या क्या चीजें हैं? आपकी सर्च रिजल्ट्स हैं, आपके एवरेज नंबर ऑफ रिव्यूज हैं, आपके एवरेज बीएसआर है ऑन टॉप 4 to 6 कैटेगरीज, सॉरी 4 to 6 सर्च रिजल्ट्स ऑन अ गिवन कीवर्ड, ठीक है, और आपका एवरेज मंथली अर्निंग पोटेंशियल है, ठीक है। सो इन चीजों को आप लोग ने एनालाइज करना है। अब आ जाते हैं इस चीज के ऊपर कि हम लोग ने एक ये पूरी एक शीट तैयार करी है, एंड तौसीफ, वकास एंड ऑल अदर्स जो कि एनरोल हुए हुए हैं हमारे ईसी के उस प्रोग्राम में, ठीक है। आई जस्ट वांट यू गाइस टू हैव अ गुड लुक, टेक दिस एज एन एग्जांपल, बिकॉज me, Taha and Asad have put a lot of effort putting all these keywords in place for you guys, just so that you guys know exactly how you guys can go about with this specific strategy. ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। ओके, शेख मोहम्मद अदील, आई वुड से कि असल में दिस सेशन वाज, एक सेकंड में से शेख मोहम्मद अदील को रिप्लाई करूं अभी। श्योर आई कैन। सो अदील, एक्चुअली हम लोग को ये सेशन कंटिन्यू करना था। व्हाट वी कैन डू इज वी कैन पुट अप मोर सेशंस इन फ्यूचर जिसमें आपको स्क्रैच से लेके चलें, ठीक है। लेकिन अभी ये सेशन वाज बेसिकली अ पार्ट of another of the previous session that we were supposed to do, तो इस वजह से मैं अभी ये कह रहा हूँ, ठीक है। So if you go back to my slides you will see कि हम लोगों ने ये 5 लेवल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। 5 लेवल्स ये क्यों दिए हुए हैं? because what this strategy entails is कि आप लोग ने पहले 4 से 5 बुक्स लॉन्च करनी है, नॉट एक साथ नहीं, एक एक करके, लेवल 5 की कैटेगरी में, फिर आपने लेवल 5 पर, और फिर आपने 3 से 4 बुक्स लॉन्च करनी है लेवल 4 पर, देन 3 बुक्स इन लेवल 3, देन 2 or maybe 3 books in level 2, and then finally you'll be launching your biggest book, which जिसमें आपने सोचा हुआ था, जो मैं बोल रहा हूँ, एक अपनी सोच रखी हुई थी, ऑब्जेक्टिव रखा हुआ था कि I will ultimately launch a book in a category which has more than 100,000 search results, which has a lot of competition. But before you jump onto this, you know this for a fact कि if you're launching your book in a area जिसमें आपके पास 100,000 या 50,000 या 40,000 प्लस सर्च रिजल्ट्स हैं, you know this for a fact कि वहां पे जो ऑथर्स बैठे हुए हैं उनकी एक बड़ी से है, वो बुक्स बहुत पुरानी, बहुत अरसे से वहां पे रैंक हुई हुई है, ठीक है। लेट्स सपोज अगर मैं हेल्थ एंड वेलनेस की बात करता हूँ, ये चले हेल्थ की अगर बात कर लेते हैं सिर्फ फॉर नाउ, ठीक है। खैर ये तो 2020 की है। वी कैन सी सम बुक्स जो 2020 से हैं, 2019 से हैं, बट देयर आर आल्सो बुक्स जो 2011 से बैठी हुई हैं। एंड इसी तरह मैं हेल्थ एंड वेलनेस में भी एक मिनट चेक करता हूँ। चलिए एक मिनट, लेट्स चेक इन योगा। We have more than 50,000 search results in yoga, and as you can see यहाँ पे हमारे पास रिव्यूज भी, एवरेज नंबर ऑफ रिव्यूज भी बहुत ज्यादा हैं। इसको छोड़ दें, इग्नोर करते हैं। आई वुड लाइक यू गाइज टू इग्नोर रिव्यूज जो कि एक्सेप्शंस हैं उस पर्टिकुलर कैटेगरी में। मैं चाहूंगा कि आप लोग एक होलसम एक पिक्चर लें उसमें कि एवरेज नंबर ऑफ रिव्यूज उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे कितने आए हुए हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते 400, 600 स्क्रॉल अप, एक तकरीबन 1,500, 250, 2,000, 2,200 अप्रोक्सीमेटली, और 2012 से ये बुक बैठी हुई है, 2011 से ये बुक बैठी हुई है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर इज, ये 2020 से बैठी हुई है, ये रीसेंट लॉन्च है, कि इससे पहले आप किसी ऐसे कैटेगरी में या ऐसी नीश में अपनी बुक को लॉन्च करें जहां पे आपको अपने आप को रैंक भी करना मुश्किल हो, कोई पुराने लोग बैठे हुए हो, उनको उनसे ऊपर आना मुश्किल हो, ठीक है। आप सबसे पहले गेट योर सेल्फ रैंक्ड इन एरियाज, और अपनी से बनाओ, अपने ऑथर की से बनाओ इन एरियाज जहां पे कंपटीशन कम है, सही है। एंड दिस विल ब्रिंग यू अ मोर ऑफ अ ट्रिकल डाउन इफेक्ट, जिसकी वजह से आप अपने आप को
अपनी फ्यूचर बुक्स को रैंक करना आसान होगा. यू नो दिस फॉर अ फैक्ट कि अगर एक ऑथर मशहूर होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आज एक बुक लॉन्च करी एंड वो सक्सेसफुली अच्छी चली जाती है, और मैं उसी नीश से रिलेटेड एक और बुक लॉन्च करता हूं, तो मेरे 20% 15% कस्टमर्स आर गोइंग टू कम बैक एंड बाय दैट बुक एज वेल. एंड आप अपनी ईमेल मार्केटिंग कैंपेन्स भी चलाते हो फॉर दोज पीपल, just for your customer base, who liked your book and you want to target them again कि okay मैंने अपनी next book launch करी है और I want you guys to buy this book as well. ठीक है. So level 5 से start करना है, which is why मैंने यहाँ पे bottom up approach या ladder approach इसका नाम दिया मैंने, जहाँ पे you guys will be launching 4 to 5 books. Then next one is level 4 जहाँ पे आप लोग अपनी 3 से 4 books और launch करोगे, and then slowly and gradually you climb up the ladder all the way to level 1 जहाँ पे आप लोग ने अपनी ultimate book launch करनी है. ठीक है. So this will bring down a trickle down effect. A lot of people जिन्होंने आपकी योगा पोजेस बुक ली भी है, खरीदी भी है, पसंद करेंगे, वो आपकी योगा पोजेस जरूर पढ़ेंगे, खरीदेंगे. Lot of people who loved yoga poses will obviously go and buy your yoga books. इधर ब्रांड लॉयल्टी या कस्टमर लॉयल्टी वाली बात आ जाती है, विल गो टुवर्ड्स हेल्थ एंड वेलनेस एंड सिमिलरली गो टुवर्ड्स हेल्थ. आई विल टॉक मोर इनटू डिटेल अबाउट दिस